مسیح یسوع کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اور بلڈ آف جیسس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ روح القدس کے تعلق سے ہمارا ایپیسوڈ چل رہا تھا اور بہت سی باتیں ہوئی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، اور اس کو لے کر کافی زیادہ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں لوگوں کی طرف سے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک مرتبہ پھر سے مدعو کیا ہے جناب پادری سرفراز صاحب کو۔ جی پادری صاحب، ہم آپ کو پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی گاڈ بلیس یو۔ اچھا پادری صاحب، سب سے پہلے ایک پرسنل سوال پوچھوں گا آپ سے، کیونکہ سامعین جتنے بھی ہیں وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، اور سوالات کی بچھاڑ ہم پر لوگوں نے کی ہے۔ تو کیسا لگتا ہے جب آپ کو بار بار ہم مدعو کرتے ہیں؟ جی بھائی صاحب، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ بھی مجھے بلاتے ہیں، اور آپ کے ویورز جتنے بھی اس چینل پر ہیں وہ سبھی پیار کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے سوال کیے ہیں۔ اور پادری صاحب، کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ روح القدس کے تعلق سے کہ روح القدس ہے کیا چیز، پہلے اس کو خدا کے روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی ہم یہ زبانوں کو اور نبوتی کلام کو ہر چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جی۔ اچھا، تو یہ جو غیر زبانیں ہیں سب سے پہلے وہ ہے کیا چیز، وہ ان کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ بڑا لوگوں نے بار بار یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ غیر زبانیں تھوڑا سا اوپن کر کے ہمیں بتائیں۔ جی، آپ سب کی ایک بار پھر سے سلامتی چاہتا ہوں، اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی، روح القدس کے بارے میں بات کی، غیر زبانوں کے بارے میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ ٹاپک ذرا لمبا ہے، اس لیے اس کو میں صرف شارٹ کٹ الفاظ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ غیر زبانیں جو ہے وہ خدا سے باتیں کرنا ہے۔ یعنی دو ہی زبانوں کا ذکر ہے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر، اس کے 13ویں باب میں، کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اس کا مطلب ہے صرف دو قسم کی زبانیں ہیں، یا آدمیوں کی زبانیں ہیں یا آسمانی زبانیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اگر غیر زبان کو دیکھیں تو کوئی بھی زبان ہے، چاہے وہ یہاں پر زمینی زبان ہے یا آسمانی ہے، اگر اس کو ہم نہیں جانتے تو ہمارے لیے تو غیر زبان ہے۔ جی بالکل، اگر ہمیں انگلش نہیں آتی تو یہ بھی غیر زبان ہے، عربک ہے یا دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں بالکل وہ ہمارے لیے غیر ہیں، جن سے ہم انجان ہیں۔ ہاں جی، لیکن یہاں پر جو زبانوں کی بات ہے تو وہ آسمانی زبانوں کی بات ہے، خدا سے بات کرنے کی بات ہے، کہ خدا کی زبان کو کوئی نہیں جانتا۔ بھائی صاحب، بائبل بھی نہیں بیان کرتی کہ اس کی اصل زبان ہے کیا، کون سی ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ہم سے ہماری مدر ٹنگ کے اندر، ہماری جو ہماری بیسک زبان ہے اس کے اندر ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، جسے ہم مادری زبان بھی کہتے ہیں۔ مادری زبان کہتے ہیں۔ بالفرض ہماری مادری زبان جو ہے، مدر ٹنگ جو ہے، وہ یہاں پر پنجاب میں رہتے ہوئے پنجابی ہے۔ ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اس کو ہم اردو کہتے ہیں، اور انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ انگلش ہے۔ اس لیے خدا دیکھتا ہے کہ ہمیں کس زبان کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم یہاں پر اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہماری مدر ٹنگ کے اندر بات کرتا ہے، یعنی پنجابی کے اندر۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پنجاب میں ہیں تو وہ پنجابی میں بات کرتا ہے۔ اچھا، پنجاب میں اگر کوئی رہنے والا ہے تو خدا اس کے ساتھ جب بات کرے گا تو پنجابی میں کرے گا، اور اگر انگلستان میں ہے تو اگر کوئی انگلینڈ میں ہے یا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں، وہ جو بھی اس کی مادری یا قومی زبان ہوگی اس میں خدا اس سے بات کرے گا تاکہ اس کو سمجھ آ سکے۔ جی سمجھ آ جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ بالکل ٹنگس اور لینگویج کے اندر یہی پرابلم ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ہماری قومی زبان یا انٹرنیشنل زبان کو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹنگس جو ہے وہ ہماری مدر لینگویج ہے، مدر ٹنگ ہے، جو کہ ہم اپنے گرد و نواح میں ہم بولتے ہیں۔ اچھا بھائی صاحب، یہاں پر ایک سوال ہے بڑا زبردست، اسی کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر یہ مادری زبان میں خدا بات کرتا ہے تو وہ جو ان کو دکھائی دے رہی، حالانکہ آواز تو سنائی دیتی ہے، ان کو دکھائی دے رہی ہے، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ زبان تو سنائی دیتی ہے اور یہاں پر دکھائی دے رہی ہے۔ جی، اگر آپ اعمال
2 बाब को गौर से पढ़ें तो उसकी पहली जो हमने एक आयत पहले भी कोड की थी पिछले उस एपिसोड आयत से पहले जो है दूसरी आयत के अंदर वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने आवाज़ को सुना है, कुछ वहाँ पर पहले सुनाई दिया है, समात फरमाया उसको जी, यानी पहले सुनाई दिया है और उसके बाद फिर उनको दिखाई दिया है। यहाँ पर ज़रा गौर करने वाली बात है, इसको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है, इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है और खुदा सबसे बढ़कर यह है कि खुदा से हिकमत मांगने की ज़रूरत है ताकि वो हमें समझ दे, तो फिर हम समझ पाएंगे, अदरवाइज हम समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर बड़ा मज़ेदार और दिलचस्प सवाल है और आप भी बड़ा एंजॉय करेंगे इसको। और बड़ी खूबसूरती के साथ एक भाई ने भी हमें ये क्वेश्चन किया और कुछ सिस्टर हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है और उन्होंने कहा जी हम आप लोगों को इसलिए क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अक्सर जब हम किसी से सवाल पूछते हैं तो वो माइंड कर जाते हैं, तो आप बड़े मज़े के साथ और बड़ी दिलचस्पी के साथ और एंजॉय करवाते हैं, हमें बाइबल मुकद्दस में से हमें सिखाते हैं और खुश होकर जवाब देते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल है योएल नबी के ताल्लुक से। आपको पता है कि उनकी मार्फत जो बयान किया गया है इसी चैप्टर में वो बताते भी हैं कि तुम्हारे जवान जो हैं बूढ़े वो रोया देखेंगे, ख्वाब देखेंगे, नबूवत करेंगे। जबकि ये बात की गई थी आखिरी ज़माना में ऐसे होगा, जो आने वाली जो पेशीन गोई की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो गैर ज़ुबानों के साथ रूह कुद्स का ताल्लुक को जोड़ा जाता है, ये फिर ये क्या चीज़ है, ये कैसे आपस में मेल खाती हैं ये चीज़ें? क्योंकि आगे जो ये बात है इसी चैप्टर में वो कुछ और बता रही है और ये जो है ये कुछ और बता रही है, ये कैसे आपस में मेल खाते हैं, ये ज़रूर थोड़ा सा इसको वाज़ह कीजिएगा। जी शुक्रिया, ये बड़ा दिलचस्प जो है क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि ये जब तक खुदा हिकमत ना दे तब तक ये खुल नहीं सकता। बेशक। और मैं साइमिन से भी बड़ा खुश हूँ कि अगर आप सवाल करते हैं तो इसमें हेजिटेशन मत करें, आप सवाल ज़रूर करें, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो इट्स मीन कि खुदा आपकी हिकमत को बढ़ा रहा है, क्योंकि आप कुछ जुस्तजू में हैं, आप जानना चाहते हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर सवाल करें, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ही यही है। आइए इसकी तरफ। यहाँ पर जो भाई साहब आपने सवाल किया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मैं इसको शॉर्टकट बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इमाल 2 बाब के अंदर जो पहली 14 आयात के अंदर है या 13 आयात के अंदर है, वो सिर्फ गैर ज़बानों का तल्लक है। और जब हम यहाँ पर पतरस जब उठ खड़ा होता है 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और वो लोगों को कहता है कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि आखिर ज़माने में क्या होगा। अब बहुत सारे हैं जो है वो इसी बात पर अटक गए हैं कि गैर ज़ुबानें ही आखिरी शायद बरकत है, लेकिन यहाँ पर जो बयान किया गया है आखिर ज़माने की बरकत जो है वो रोया, नबूवत और ख्वाब है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और इसी को लेकर सवाल किया बहुत सारे लोग हमारे रोया के खिलाफ हैं, नबूवत के खिलाफ हैं, ख्वाबों के खिलाफ हैं। तो मैं सिर्फ उन सबसे ही कहूँगा कि भाई ज़रा इसको गौर से पढ़ें, आखिर ज़माने की बरकत ही यही है। अब ये ऊपर नहीं नजर आती जी, ये क्वेश्चन था जी तालमेल कैसे खाते हैं? हाँ जी, कि ऊपर गैर ज़बानें हैं, यहाँ पर ये बरकत है। तो अगर गौर करें तो मैं आपको सिर्फ बहुत कम पीरियड में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर जो ये बरकत जारी हुई है, रूह कुद्दुस का बपतिस्मा हुआ है। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि रूह कुद्दुस का कैसे बपतिस्मा हुआ। तो इसमें सिर्फ ये बताऊंगा कि ऊपर 14 आयत के अंदर 9 की 9 बरकतें मौजूद हैं। यानी पाक रूह का बपतिस्मा जो हुआ है होली स्पिरिट से, उसके बाद जो मैनिफेस्टेशन है या रूह कुद्दुस का इज़हार है वो 9 की 9 बरकतों के साथ है। और ये मत कहें कि अगर गैर ज़बानों का हमारे पास नहीं है, नेमत नहीं है, तो जी रूह कुद्दुस का बपतिस्मा नहीं है। भाई यहाँ पर 9 की 9 बरकतें हैं। गो पहली बरकत जो बोली गई वो यही है, लेकिन रूह कुद्दुस का बपतिस्मा जो है वो रोया के साथ है।
अच्छा, यानी कि जो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है वो रोया के साथ रिलेटेड है, और क्योंकि रोया, ख्वाब और नबूवत की जो पतरस ने भी बात की योएल नबी की मार्फत जो पेशीन हुई, मैं उसके बारे में एक बार फिर उसी आयत को बयान करना चाहूंगा। लिखा है और उन्हें, तीसरी आयत के अंदर, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी हैं और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए। यानी जब हमें दूसरे आलम के अंदर ले जाया जाता है, रूह में उठा लिया जाता है और रूह में ये चीजें वो हमें देना शुरू हुआ है, तो फिर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है। और अगर मैं करंथस की कलीसिया के अंदर जाऊं तो वहां पर लिखा है हमने एक बदन होने के लिए ये बपतिस्मा लिया है। और ये नेमतें जो हैं उनमें से कोई भी बरकत आती है तो वहां पर लिखा है हमने एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया है। अगर आप चाहें तो मैं इसको अगर पढ़ दूं तो ज्यादा अच्छा है। रेफरेंस जो है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब कलाम मुकद्दस का हवाला खुल जाता है तो फिर किसी किस्म के भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब, उसके अंदर लिखा है ये नेमतों का जिक्र है, 9 की 9 नेमतों का जिक्र है 4 से 11वीं आयत तक। और यहाँ पर 12वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर वह मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो, खा यूनानी, खा गुलाम, खा आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। इस आयत पर जरा हम फोकस करें कि एक ही रूह हमें पिलाया गया है। आपको अगर रोया की बरकत है, मुझे अगर टंग्स है, तो एक ही रूह ने पिलाया है। और क्यों पिलाया है? ताकि हम एक बदन हो जाएं। ये हम सबको यूनिटी में रखने के लिए ये चीजें की। गैर ज़बानी जो है यूनिटी को बयान करती हैं, जैसे कि बाबल के बुरुज पर हुआ कि वहां पर ज़बानों पे तफरका डाल दिया गया, लेकिन यहां पर है ज़बानों को यकजान करके हमें यकजान किया है ताकि हम रूह में एक हो जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात करता चलूं कि अगर उस वक्त बाबुल के ज़माना में जब वो बुर्ज तैयार किया गया तो ये ज़बानें तब्दील हुई जी, तो तब्दीली से लोग दूर दूर हुए और अब इसी ज़बानों के वसीला से इनको जोड़ा जा रहा है जी, यूनिटी में लाया जा रहा है। अच्छा, इसका ये मकसद था जी, बिल्कुल जी। बहुत खूबसूरत बात और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो यहीं पर हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है और इसी तरह की इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो देखने के लिए ब्लड ऑफ जीसस टीवी को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट्स करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफीद हो सके। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।